warm welcome to your maths classes. I hope that all your exams have been well and I wish that you all score good marks. So now from this lecture we are going to start with a new chapter, that is probability. Before we start this chapter, obviously we know that whenever we start with something there are certain terms related to that particular chapter and we have to be very much aware about it. So what we are going to do, first we are going to understand the meaning of probability, the history, like from where this chapter originated, and after that we are going to study some of the terms related to this chapter. So the first thing about probability is the definition, the meaning of the term. Suppose I say a sentence to you that maybe there are chances that the price of petrol will go up. It may be that the price goes up or the price may not be up. For example, if I say that it may rain today, then there are chances that it may rain or it may not rain. तो सेम तरीके से जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो हम बात करते हैं चांसेस की, किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की, कि जो बात हम कह रहे हैं वो होगी या नहीं होगी, तो उसके क्या चांसेस हैं, उसी को हम मैथमेटिकल तरीके से प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं. Therefore, if I summarize the definition, then it is whenever the terms like most probably, chances, doubts, etc., we use these terms in the language, there comes the concept of probability, where we talk about uncertainty of the occurrence of event. And if we mathematize those things, then we have the chapter probability, which is of extensive use in our life. Though it started initially with gambling, but now it is used very much in the field of science, commerce, biological sciences and weather forecasting. Weather forecasting is one of the major fields where probability is used. हमें पता चल जाता है कि कल का मौसम कैसा होने वाला है. चांसेस हैं कि वैसा मौसम ना हो, लेकिन हो सकता है कि मौसम वैसा ही हो जाए जैसा कि आपको फोरकास्टिंग में बताया जा रहा है. So there are always chances when we talk about the weather of the next day. So there we use probability. Now the next thing that we are going to study is the history of probability, कि इसका origin जो starting है, ये जो concept है वो कहाँ से आया. तो बहुत पहले इसका यूज जो है वो गैम्बलिंग में होता था. एक गैम्बलर थे जिन्होंने कि चार्ल्स मेयर, उन्होंने पास्कल से कहा, पास्कल जो है वो मैथमेटिशियन थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ डाइस की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करिए, उसमें मेरी हेल्प करिए डाइस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. तो बी पास्कल ने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो भी उनकी गैम्बलिंग से रिलेटेड इश्यूज थे, इन कोलैबोरेशन विद अनदर मैथमेटिशियन जिनका की नाम है फर्मेट. तो वहाँ से फिर ये कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का. स्टार्टिंग में तो पर्पस कुछ और था, लेकिन अब हम इसका अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं. बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई है. 1713 में एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव बुक लिखी गई थी, जे बर्नौली जो है उसके राइटर थे. फिर 1812 में लैप्लास ने एक बुक पब्लिश की थी, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बात करते हैं चांसेस की, तो वो उस इवेंट के ऑकरेंस के कितने चांसेस हैं ये चीज़ हमें पता हो. Now we are going to start with some of the terms related to probability, and so be prepared and try to understand each of the terms clearly. So the first thing is experiment. क्या होता है? An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. यानी कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कि जो रिजल्ट है वो वेल डिफाइंड होगा अगर, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं. हर एक आउटकम जो कि पॉसिबल है कि वो अगर हमारा इवेंट जो है वो होता है या नहीं होता है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको हम इवेंट कहते हैं. फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस is called a random experiment. For example, if you are given with the question true or false, तो possibility क्या है? या तो वो statement true होगा या तो वो statement false होगा.
लेकिन हम अभी जब तक हम उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको रीड नहीं करेंगे, तब तक हम ये बता नहीं सकते हैं कि वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है. So there comes a random experiment, and with that, if we cannot predict the main thing about random experiment is that we know these are the possible outcomes, but we cannot predict which one is correct. Next is trial. By a trial, we mean performing a random experiment, and a trial is one of the basic terms that we use in our daily life. Like we solve most of the questions in chemistry. You must be balancing equations with hidden trial method. So that is the basic term. We must be aware about it. Now we come across the formula with the help of which we are going to calculate different possibilities, that is the probability related to the occurrence of different events we are given with. Suppose we have to perform an experiment and we have total number of trials as n. So if we have n number of trials, then the empirical formula, the empirical probability of happening an event E is defined as, first if the event is E, तो हम उसकी probability जब लिखते हैं तो हम उसको PE से denote करते हैं. So if we say that what is PE, तो P is the probability and E is the event. Probability of occurrence of this event is represented as P of E, and it is given as number of trials in which event happens, number trials in which event happens upon total number of trials. So this is the formula for occurrence of an event, and we denoted it by P of E. Now on the basis of this, we are going to solve questions from your exercises, and one by one we are going to try them. Some of these questions we are going to solve here in the video, rest you are going to try on your own. From this chapter probability, we have only one exercise, so you are going to solve all the questions in your fair copy. यानी कि probability chapter से सारे ही questions जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल्स टू 500. नेक्स्ट वी आर गिवन we get head 285 times. So number of times we get head equals to 285. Similarly, number of times we get tail, 250 times. So now you have to find, when the question is कि when a coin is tossed at random, what is the probability of getting the head? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है देती, probability क्या हो जाएगी head की. हम स्टेप बाय स्टेप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस आई जस्ट गिव यू अ हिंट एंड यू हैव टू ट्राई दैट. So first part is probability of getting a head. Let E be the event of occurrence of getting head. This we have to mention कि E जो है वो कौन सा इवेंट है. तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि E is the event of occurrence of head.
So probability of E कितना हो जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड, ये पूरी चीज आप यहाँ लिखेंगे, दैट इज 285 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 500. So like this you will simplify this fraction that you do very well, and that will be the probability of occurrence of this event. One more thing, अगर हम कोई बात कहते हैं तो पॉसिबल है कि वो हो सकता है या फिर पॉसिबल है कि वो नहीं हो सकता है. अगर वो चीज़ पॉसिबल है कि हो रही है, यानी कि वो इवेंट ऑकर कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एंड वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, देन वी आर गोइंग टू से कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है एंड वी थ्रो दैट डाइस. सो इफ वी आर थ्रोइंग दैट डाइस, तो जो नंबर्स आएंगे उस पर वो 6 से कम ही होते हैं. मान लेते हैं कि हमारा इवेंट है कि E लेस दैन 7, यानी कि जो नंबर्स आए अगर हम डाइस को रोल करें तो वो 7 से छोटे हो नंबर. तो दिस इज एन ऑब्वियस थिंग कि जब भी हम डाइस को रोल करेंगे तो नंबर्स आर गोइंग टू बी लेस दैन 7. वी कैन आइदर गेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6. So this is a true event, that this is a sure event. We are very sure about it कि अगर हमने डाइस को रोल किया तो फिर हमें जो नंबर्स मिलेंगे that will be less than 7. तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1. That is probability of a sure event will be equal to 1. Now suppose we have the probability in the same case. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि हमने डाइस को रोल किया और उस टाइप पे जो नंबर आ रहा है वो 7 से बड़ा है. तो हमें पता है कि उसमें जो नंबर्स होते हैं नॉर्मली वो 6 तक ही होते हैं. 7 से बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि 7 से बड़ा नंबर आए. तो उस केस में इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0. तो अगर हम इन जनरल बात करें तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है 0 कि वो ऑकरेंस बिल्कुल नहीं होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 1 कि वो ऑकरेंस होगा. वी आर वेरी श्योर अबाउट इट. तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है किसी भी इवेंट के ऑकरेंस की, दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1. यानी कि किसी इवेंट के ऑकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0 लेस दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट लेस दैन इक्वल टू 1. बी वेरी श्योर अबाउट इट. दिस इज द रेंज फॉर द वैल्यूज. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. यू सिंप्लीफाई दिस and you will get the solution. Similarly, the second part is you have to find the probability of getting a tail. तो अब हम वापस से क्या करेंगे, let मान लेते हैं E be the probability, E be the event of occurrence of tail, of getting tail. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, न्यूमरेटर में we have number of times we get tail that is given as 250. यहाँ हमने न्यूमरेटर में लिखा 250. फिर डिनोमिनेटर के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो डिनोमिनेटर में होते हैं. उसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 500. So here we are going to write 500. We are going to simplify this fraction and hence you will have the solution. So like this only you are going to solve the questions. We are going to discuss some more questions from this. If you understand the concept of this chapter, then this chapter is going to be very easy. बहुत ही आसान सा चैप्टर है. आपको बस समझना है कंसेप्ट्स को कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है. द क्वेश्चंस कैन आइदर बी फ्रॉम योर डेली लाइफ और फ्रॉम द बुक दैट वी आर स्टडी. सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 and 3 you can do on your own. Question number 4, a die is thrown 300 times, so total number of trials that we have is 300, and then the outcomes are noted as this. When a die is thrown at random, what is the probability of getting a 3? Question number 4, first part.
स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, that is probability of the event, and we have studied the formula for probability of event. What is it? जो नंबर ऑफ चांसेस 3 के आने के हैं वो डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि कितनी क्या प्राइस है कि जो न्यूमरेटर आएगा, जो भी हमें चीज चाहिए, यानी कि हमें चीज चाहिए यहाँ पे, तो क्या चांसेस है कि 3 आ रहे हैं अपॉन जितनी बार भी हमने ट्रायल किया हुआ है। तो आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में लिखा है 3 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 54 है, यानी कि आउट ऑफ 300 टाइम्स 54 टाइम्स वी गेट 3, 54 टाइम्स हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे 54 और टोटल प्राइस कितने हैं 300, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितना हो गया 54 अपॉन 300। इसी तरीके से इसके बाकी के जो पार्ट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना हो जाएगा, तो 6 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके आने की दैट इज 33, उसको हम क्या करेंगे 300 से डिवाइड कर देंगे एंड विल राइट द आंसर इन फ्रैक्शन। देन अगेन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 39 है, तो वी हैव द प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 39 अपॉन 300। Like this only all the questions are similar, so you're going to solve the questions, all the questions. Now we're going to discuss question number 8 from this. On one page of a telephone directory there are 200 phone numbers. तो इस केस में हमारे पास टोटल ट्रायल्स कितने हो गए, ट्रायल के लिए जो टोटल ऑप्शंस है दैट वी हैव 200। क्वेश्चन नंबर 8, तो फोन नंबर्स जो है वो कितने 200 है, और उनका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो नंबर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है। तो लेट अस सपोज कि अगर उस फोन नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 आता है, तो उस डायरेक्टरी में ऐसे 19 नंबर्स हैं, 19 नंबर हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 19 है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 जो है वो 19 टाइम्स आ रहा है 19 नंबर्स में। इसी तरीके से 1 के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 22, यूनिट प्लेस पे अगर 2 आता है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 23 एंड सो ऑन। एंड द क्वेश्चन सेज कि वन ऑफ द नंबर्स इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द पेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the unit digits of the chosen number is 5। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या करना है 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, एंड इन द टेबल द फ्रीक्वेंसी इज गिवन यू टू बी 24। सो द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी that the unit digit of the chosen number is 5 is equals to the frequency of 5 is 24 and total number of जो फोन नंबर है वो कितने हैं 200। So 24 by 200 सिंप्लीफाई कर लेंगे and this is the required fraction. So what you have to do is this week you have to solve this chapter. We have only 11 questions in this chapter. Once you complete it, if you have a doubt, we'll discuss it on the next lecture. Else we're going to start with the chapter surface area and volumes. तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी में सॉल्व करिए।